Hi, today we will be learning about the sets. Set is the first chapter of algebra in 9th standard. Prior learning about the sets, let us see some of the things of previous year. First of all, natural number. What are natural number? It begins with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. Now comes the whole number. What are the whole number? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. The difference between whole number and natural number is 0. In whole number there is a 0, whereas in natural number there isn't 0. Now next thing we are supposed to remember is integer. Integer includes both negative numbers as well as positive one. 0 is the origin of the integer. So we can say that the integer you might have seen in the earlier standards, it is represented with the number line. Now prime number. Prime number are basically that number which are divisible by its own number. Example 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and so on. These all numbers are divisible by their own number, if you will see. Now the number which aren't the prime number are regarded as the composite number. Composite numbers 1, 4, 6, 8, 9, 10 and so on. So composite number begins with 4, 6, 8, 9, 10. So composite number are those numbers which aren't the prime number. Point to remember is that 1 is neither a prime number nor a composite number. तो 1 जो होता है वो ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है. Another point to remember is that 2 is the only even prime number. Means that 2 जो होता है वो प्राइम नंबर भी है एंड इवन नंबर भी है. Even number we can say that there are those number which are divisible by 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. Odd numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. So odd numbers are not divisible by 2, means it cannot be divided exactly into 2 equal halves. Let's come to the sets. What are sets? Sets are generally a collection of
relative elements. Relative elements. The point to be remembered, it is a relative element. It's a collection of a particular thing. सेट कुछ चीज होती नहीं है, सेट होता है कलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग. एग्जाम्पल के तौर के फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल सी, फॉर एग्जाम्पल ए सेट ऑफ ए कंपास बॉक्स. अब सेट ऑफ द कंपास बॉक्स में क्या क्या चीजें हो सकती है. अगर तुम देखेंगे सेट ऑफ कंपास बॉक्स में क्या होगा, एक कंपास बॉक्स, फिर कंपास, डिवाइडर, स्केल, 2 सेट स्क्वायर, one protector, sharpener, इरेजर एंड पेंसिल इन जर्नल. ये सब चीज़ें एक कंपास बॉक्स में होती है. तो ये जो कंपास बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बनाते हैं कंपास बॉक्स का एक सेट. उसी तरीके से अगर हम देखें तो ज्वेलरी सेट में क्या क्या होता है, जनरली नेकलेस होगा, बैंगल होगा, इयररिंग्स होगा और भी कुछ आइटम्स हो सकते हैं. तो वो मिला के एक सेट बनाता है. तो ये बन जाते हैं रिलेटिव एलिमेंट. रिलेटिव एलिमेंट्स का मतलब ये हो गया कि उस चीज से रिलेटेड होना चाहिए. कंपास बॉक्स से ये सारी रिलेटेड आइटम है, तब जाके ये कंपास बॉक्स का सेट बना. नाउ लेट अस सी हाउ मेनी वेज आर देयर टू राइट सेट्स. सेट जो होता है वो स्टैटिस्टिकल अलजेब्रा से रिलेटेड है, स्टैटिस्टिकल इन नेचर है. तो देयर आर मोस्टली अप्रोक्सीमेटली 3 ways टू राइट दी सेट. पहला सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर हम इसको रूल मेथड भी बोलते हैं. सेकंड लिस्टिंग या फिर रोस्टर मेथड. एंड थर्ड वन इज Venn diagram. Now let us see about the, first of all we will see the second method, that is the listing or roster method. लिस्टिंग मेथड एक लीस्ट जैसा होगा. लीस्ट जैसा हम लिखेंगे इसको, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड. अब जैसा एग्जांपल के तौर पे ए इज ए सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक. हम पहला मेथड कर रहे हैं जो है लिस्टिंग मेथड. ये बात याद रखें, लिस्टिंग मेथड है ये. विच मेथड इट इज, लिस्टिंग मेथड. देयर आर 3 टाइप ऑफ, वंस मोर आई एम रिपीटिंग इट, that there are 3 type of methods: listing method, set builder form and Venn diagram. listing method, set builder form और Venn diagram. सबसे पहला हम listing method यहाँ पर कर रहे हैं. Example is placed over here in front of you, that is A is a set of all days in a week. तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में रहेगा. दिस इज रिगार्डेड एज द बेसिस
या फिर हम लोग इसको करली ब्रैकेट, जनरली करली ब्रैकेट भी बड़े स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं। अब सारे के सारे जितने भी वीक्स में डे है, वी नो इट वेरी वेल, हाउ मेनी डेज आर देयर इन वीक, 7 डेज। तो उन सबों का नाम लिखेंगे हम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। करली ब्रैकेट या फिर तुम्हारा ब्रेसिस तुम क्लोज कर दोगे इस तरीके से। हर एक एलिमेंट को, एलिमेंट के बीच में तुम कॉमा डाल के सेपरेट करोगे, या सपोज टू सेपरेट इट बाय द कॉमा, एंड ये सब चीजें नहीं डालनी चाहिए। तो याद रखने की ऐसी चीज है कि सेट का नाम कैपिटल लेटर, तुम्हारे ब्रैकेट जो रहेगी वो करली ब्रैकेट रहेगी या फिर ब्रेसिस रहेगी। हर एक एलिमेंट, यहाँ पे जितने भी डेज इन ए वीक है, जितने भी आइटम्स है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। ईच ऑफ देम आर एलिमेंट्स रिगार्डेड एज एन एलिमेंट। और साथ ही साथ हर एलिमेंट्स के बीच में कॉमा डाल के तुम सेपरेट करोगे। Another example we will see, B is a set of natural number less than 10। अब नेचुरल नंबर मैंने पहले भी बताया था, नेचुरल नंबर क्या, कौन सा नंबर होता है, नेचुरल नंबर बिगिंस विथ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे सबसे पहला आप ध्यान से पढ़ लो कि क्या बोला गया है, B इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है, और वो भी लेस देन 10 है। तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर। नेक्स्ट मेथड वी विल सी इज सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। जनरली सेट इन दिस मेथड are expressed in the form of statement। ये statement के form में लिखा जाता है। For example, we will give the example of listing method what we have used earlier। B is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसे किस तरीके से लिखा जाता है, B is equal to red pen X such that X belongs to natural number and X is less than and equal to 9। अब यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर इज डैट सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो बार होता है उसे हम सच डैट ऐसा रीड करते हैं। व्हाट वी रीड इट, सच डैट। और ये ई जैसी जो साइन है इसे हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू रिमेंबर, यू आर सपोज टू एनालाइज दिस सेट। What you can see in this set, these are the sets of natural number 1 2 3 4 5 6 7 8 9। These are the set of natural number। इसीलिए हम लोगों ने ये लिखा B is equal to X such that X belongs to N। X belongs to N इसीलिए लिखा क्योंकि ये जो सेट है B, सेट B के अंदर सारे नंबर है, वो सारे नंबर नेचुरल नंबर है। एंड नाउ वी विल सी, does this set is ending or not somewhere? Yes, this set is ending at 9। यहाँ पे क्राइटेरिया किया, क्रिएट कर दिया क्या है, सारे नेचुरल नंबर हैं बट दे आर लेस देन 10। दे आर लेस देन 10 मतलब 1 to 9 तक के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो इसका मतलब हम इस तरीके से क्राइटेरिया यहाँ पे लिखेंगे, x is less than or equal to 9। So point to remember is that
वी आर सपोज टू राइट इन ए स्टेटमेंट फॉर्म, और ये जो बार होता है उसे हम क्या रीड करते हैं, सच दैट। ये जो ई जैसी साइन होती है उसे हम फिर से बता दें कि इसे हम लोग बिलोंग्स टू कहते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि ये सेट कौन सा सेट है। ये सेट यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है करके हमने कैपिटल एन यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। फिर ये सेट जो है इट इज नॉट ए इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट वी विल डिस्कस इन दी लेटर सेशन। तो ये फाइनाइट सेट है जो एंड हो जाता है 9 पे, इसलिए हमने क्राइटेरिया क्रिएट कर दिया कि ये नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 9। अब इक्वल टू डालना ना भूलेगा, ये जो यहाँ पे जो नीचे जो माइनस साइन जैसी दिखती है ये लेस देन एंड इक्वल टू बताता है कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 9, मीन्स 9 is also included in that. Now another example we will see from the previous one only. A is equal to Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Now how you are going to write in set builder form? How we are going to read it? A is a set of x such that x is an all days in a week. Thanks for watching our videos. Please like our videos.